નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓનલાઈન શિક્ષણમાં જ્ઞાન વિહાર સંકુલ આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જેમાં બીજા અને ત્રીજા પાઠનું રિવિઝન કરીશું. હવે પહેલા વિડીયોમાં આપણે પહેલા પાઠનું રિવિઝન કરી ચૂક્યા છીએ. હવે બીજા પાઠમાં પેજ નંબર 15 ઉપર જે તમારી નવનીતમાં પેજ નંબર 15 ખોલો અને તેની ઉપર ધ્યાન. તો પહેલું આપ્યું છે મુહાવરે કા અર્થ ઓર વાક્ય પ્રયોગ. તો સૌ પ્રથમ આપણે મુહાવરે કા અર્થ જોઈ લઈએ. તો પહેલું જ છે મુહાવરો કે હેજે કી ભેટ હોના. શું છે? હેજે કી ભેટ હોના એટલે કે હેજે કી બીમારી સે મર જાના. તેનું વાક્ય છે कि हर साल हजारों लोग हैजे की भेंट हो जाते हैं. હવે બીજો રૂઢિપ્રયોગ દિલ કચોટના. દિલ કચોટના એટલે દિલ में दुख होना. જેનું વાક્ય છે કે બેटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है. ત્રીજો રૂઢિપ્રયોગ બેડા પાર લગાના એટલે કે સંકટ से બચાના. તેનું વાક્ય છે કે ભગવાન ही ગરીબો કા બેડા પાર લગાતા है. ચોથું ગલે મિલાના એટલે કે પ્રેમ સે ભેટના. તેનું વાક્ય છે કે નए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे से गले मिलता है. પાંચમું चूर चूर होना એટલે કે ટુકડે ટુકડે हो जाना अथवा पूरी तरह नष्ट हो जाना. तो तेનું वाक्य છે કે मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिर कर चूर चूर हो गया. એના પછી છઠ્ઠો રૂઢિપ્રયોગ જેમાં આપણને આપ્યું છે કે આંખ ઉઠાકર ન દેખના. શું આપ્યું છે કે આંખ ઉઠાકર ન દેખના. તો એનો અર્થ થાય છે કે ઉપેક્ષા करना अथवा बिल्कुल न देखना. तो तेनु वाक्य कि सेठ जी ने पुराने नौकर की और आँख उठाकर भी नहीं देखा. હવે સાતમું દિલ બેઠ જાના એટલે કે હતાશ યા નિરાશ હોના. તો તેનું વાક્ય છે કે શાદી की कीमत सुनकर साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल બેઠ ગયા અથવા હતાશ થઈ ગઈ એમ. તો એની આગળ આઠમો રૂઢિપ્રયોગ કલેજા મજબૂત કરના એટલે કે હિંમત જુટાના. તેનું વાક્ય છે કે કલેજા મજબૂત કર હમે આતંકવાદીઓ કા સામના કરના પડેગા. હવે નવમો રૂઢિપ્રયોગ બાલ બાકા ન હોના એટલે કે જરા ભી નુકસાન ન હોના. તેનું વાક્ય છે કે ડાકુઓને ગોલીઓ ચલાઈ ભી પર કિસી કા બાલ બાકા ન હુઆ. દસમો રૂઢિપ્રયોગ રંગ જમાના એટલે કે પ્રભાવિત કરના. વાક્ય देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ के श्रोताओं पर रंग जमा दिया. હવે 11મો રૂઢિપ્રયોગ છે મુંહ તાકે રહ જાના. મુંહ તાકતે રહ જાના એટલે કે ચકિત હો જાના. તો તેનો રૂઢિપ્રયોગ શું છે કે મુંહ તાકે રહ જાના એટલે તેનો અર્થ થાય છે કે ચકિત હો જાના. વાક્ય सेठजी की बात सुनकर गरीब मजदूर उनका मुंह ताकता रह गया. 12મું સુરલોક સિધારના. જો શું કયો છે કે સુરલોક સિધારના એટલે કે મર જાના. महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए. 13મું माटी का चोला माटी में मिलाना એટલે કે મર જાના અથવા નષ્ટ હો જાના. તો તેનું વાક્ય થાય છે કે એક દિન મનુષ્ય કા માટી કા ચોલા માટી में मिल जाता
है। 14મું છાતી પીટ લેના। જો છાતી પીટ લેના એટલે કે દુઃખ પ્રકટ કરના, તો તેનું વાક્ય છે કે બેટા ગુસ્સે में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। હવે એના પછીનો 15મો રૂઢિપ્રયોગ દિલ ચીરના એટલે કે બહોત દુઃખ પહોંચના। દિલ ચીરના એટલે કે બહોત દુઃખ પહોંચના। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। जो શું કીધું છે કે બેટે કી બુરી કરતૂતોને માँ का दिल ચીર દિયા। હવે તેના પછી આગળ प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। मोटा सविस्तार उत्तर આપણે જોવા નથી। હવે પેજ નંબર 19 ઉપર બીજો પ્રશ્ન। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले ही क्यों कर लेना चाहते थे। तो तेनो जवाब છે कि गांव के लोगों ने सोचा कि ईदगाह पहुंचने और वहां लोगों से मिलजुल कर घर लौटने में दोपहर हो जाएगी, इसलिए वे ईदगाह जाने से पहले ही अपने अपने काम कर लेना चाहते थे। હવે બીજો પ્રશ્ન છે किन किन अभावों के बावजूद हामिद पसंद था। तो तेनो जवाब है कि हामिद के माँ बाप नहीं थे, उसके घर में अनाज ही नहीं था, पाँवों में जूते भी नहीं था और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे, इसलिए हामिद प्रसन्न था। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે अमीना ईद को क्यों कोस रही थी। अमीना ईद को क्यों कोस रही थी। तो तेनो जवाब है कि ईद के दिन अमीना के घर में अनाज का दाना तक नहीं था और उसके बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे। बटुए में એટલે કે ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા હતા તો કે 5 पैसे थे। इतने बड़े त्योहार पर घर में अन्न और धन का अभाव होने से अमीना ईद को कोस रही थी। चौथो प्रश्न हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा। तो तेनो जवाब है कि हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसे खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। હવે એના પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5। दुकानों में कैसे कैसे खिलौने थे। तो कि दुकाने में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्सी और धोबीन आदि तरह तरह के खिलौने थे। ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे जब बोलने ही वाले हो। હવે એના પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया। तो तेनो जवाब है कि लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। હવે એના પછીનો 7મો પ્રશ્ન हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ क्यों लगता है। तो तेनो जवाब है कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ लगता है क्योंकि उसके रोटियां तवे पर से उतारकर चूल्हे में सेक सकते हैं। इसके अलावा कोई आग मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकालकर उसे दे सकते हैं। जो चिमटे એટલે શું થાય ચીપિયો। શું થાય ચીમટા એટલે કે ચીપિયો। હવે એની આગળ 8મો પ્રશ્ન। 8મો પ્રશ્ન છે કે हामिद ने
हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं है? तो तेनो जवाब छे कि हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाई खाना उचित नहीं है। इसमें मुंह सड़ता है, फोड़े फुसियाँ निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खाने पड़ता है। इसलिए हामिद को अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं है। एना पछी आगळ बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? तो तेनो जवाब छे कि हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआओं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। 10वां प्रश्न, अमीना ने अपने छाती क्यों पीट ली? तो तेनो जवाब छे कि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था, इसलिए। હવે પ્રશ્ન 3 છે, એક એક વાક્ય में उत्तर लिखिए। तो તેમાં पहलो प्रश्न છે, रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती थी? तो रमजान महीने में 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है। હવે बीजो प्रश्न कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो के सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। શું કીધું છે કે सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात એટલે કે उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। હવે તેના પછી આગળ प्रश्न 5, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो तेनो जवाब छे, શું કીધું છે कि रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? तो तेनो जवाब छे कि रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। रोजा किसके लिए है? तो कि रोजा बड़े बूढ़ों के लिए है। 5वां प्रश्न, हामिद कैसा लड़का है? तो कि हामिद बिना माँ बाप का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। तेना पछी 6ठो प्रश्न, हामिद किसके साथ रहता था? तो तेनो जवाब छे कि हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। 7वां प्रश्न, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो तेनो जवाब छे कि हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। 8वां प्रश्न छे कि हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? શું કીધું છે કે હામિદ હિંડોલે પર क्यों नहीं चढ़ा? तो तेनो जवाब छे कि हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा। वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसे हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए। 9वां प्रश्न, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? तो तेनो जवाब छे कि महमूद ने खाकी वर्दी कीधुं छे। जो खाकी वर्दी कोण पहरे? तो के पोलीस। तो के महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर कर मशक रखे हुए एक खिस्ती खरीदा। શું ખરીદા? એક ભીસ્તી એટલે કે એક જવાનનું ચિત્ર ખરીદ્યું। હવે 10મો પ્રશ્ન છે, નૂરે ने मेले में क्या खरीदा?
तो कि नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। 11वां प्रश्न है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। 12वां प्रश्न, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो कि हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। 13वां प्रश्न, महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? तो कि हामिद ने चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया था इसलिए। 14वां प्रश्न, अमीना को क्रोध क्यों आया? तो कि हामिद मेले से खाने पीने की कोई चीज़ न खरीदकर एक चिमटा ले आया था इसलिए उसने क्रोध आया। तेना पछी सही वाक्यांश લીખીએ। હવે આપણે એક પ્રશ્ન આપેલો છે, તેમાં 3 તેના ઓપ્શન છે, એમાંથી એક ઓપ્શન લખવાનું છે। તો ગાँव में बड़ी हलचल थी क्योंकि, तो तेमा 3 ऑप्शन आपेला है कि अगले दिन ईद का त्यौहार था, लोग ईदगाह से लौट आए थे और लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो तेनो जवाब है कि ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे इसलिए गांव में बड़ी हलचल थी। बीजो प्रश्न, अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि उसने हामिद को मेले से अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था इसलिए। હવે ત્રીજો વાક્ય છે कि चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल कितने रुपये थे? तो के 3 रुपये थे। कितने रुपये थे? 3 पैसे थे इसलिए। चौथું છે कि मोहसिन ने हामिद को बुंदू कहा क्योंकि शू कहा? बुद्धू कहा। बुंदू नहीं पण शू आवे? बुद्धू कहा। तो अ ब અને क, तो तेनो जवाब शू आवशे? तो के उसने चिमटा खरीदा था इसलिए उसने बुद्धू कहा। 5मुं, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद ने चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था इसलिए। हवे अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे थे इसलिए। हवे तेना पछी प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जे पण आपने परीक्षा में पूछावानुं छे। तो पहली खाली जगह है, खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, तो तेनो जवाब छे रमजान। बीजो खाली जगह है, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है, तो के ईद। तीजी खाली जगह, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है, तो तेनो जवाब आवशे कुबेर। शू आवशे? कुबेर। चौथुं, हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया, तो के हैजे। किसकी? हैजे की। 5मुं, हामिद अमीना को खाली जगह कहता है, तो शू आवशे? अम्मा। शू आवशे? अम्मा। हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है, तो क्या आवशे? चिमटा। क्या आवशे? चिमटा। हवे तेना पछी प्रश्न 6, विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो तमने एक प्रश्न आपेलो हशे, तेमां नीचे 4 ऑप्शन विकल्पो आपेला छे, जेमांथी तमारे एक विकल्प शोधीने लखवानो छे। हवे पहेलुं आप्युं छे कि रमजान के पूरे 30 खाली जग्या के बाद ईद आती है, तो तेनो जवाब शुं आवशे? तो तेनो जवाब आवशे रोजो। शुं आवशे?
રોજો। હવે બીજું છે કે ખાલી જગ્યા અમીના કા પોતા થા, તો તેનો જવાબ આવશે હામિદ। ત્રીજું છે અમીના અપને કો क्या समझती है, तो क्या આવશે ભાગ્યહીન। कैसी समझती है, तो કે ભાગ્યહીન સમજતી है। એના પછી આગળ જોઈ લઈએ તો ચોથો રૂઢિપ્રયોગ, ખિલોનો દેખકર કોઈ ક્યાં નહીં દેગા। શું કીધું છે કે ખિલોને દેખકર કોઈ ક્યાં નહીં દેગા, તો તેનો જવાબ છે दुआए। क्या दुआए। પાંચમું છે हामिद को किसने साथी बनाया, तो તેનો જવાબ છે महमूद ने। किसको, महमूद ने। छठू, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, तो ईदगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, ईदगाह कहते हैं। હવે તેના પછી આપણે આગળ જોઈએ તો હવે આપણે બીજા પાઠનું રિવિઝન પૂરું થયું। આગળ હવે ત્રીજા પાઠનું રિવિઝન તો આપણે આગળ કરી ચૂક્યા છીએ। જ્યારે આપણે પાઠ પૂરો કર્યો હતો ત્યારે ત્રીજા પાઠનું રિવિઝન થઈ ગયું છે। તો પરીક્ષામાં 1 થી 3 પાઠનું રિવિઝન કરવાનું છે, પેપર સારા અક્ષરે અને વ્યવસ્થિત લખવાનું છે, જેની આપણે હવે તૈયારી કરવાની છે। તો હવે 1 થી 3 પાઠનું રિવિઝન પૂરું, તો તમે સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત અને સરખી રીતે પેપર લખશો તેવી અમારી અપેક્ષા છે। વંદે માતરમ, નમસ્તે।